Dear friends, we are going to talk about CUET. Although it has been very new, or there are various changes has happened in the CUT examination since only one time we have been through CUT. Last year it was introduced, and this year there are a couple of changes. Our today's topic or discussion is going to happen with Divyanshu, who is already ranked 2 in last year's CUT examination, and our subjects would be around food technology and courses related to that. Okay, so now I'll just brief about the whatever the courses that has been introduced by CUET or exam conducting body, or last year what was the code and what has happened to this year, what is the name currently it is going on, and what are the other courses that will be getting through that. Okay, so in the row earlier course that was previous year, the name was PGQP08, which has happened to be MTQP06 with food engineering technology. Through that, we'll be getting MTech degree in BHU, Mizoram University, Solini University, and other couple of universities. The syllabus is almost equivalent to GATE, or you can say it has just copy of GATE. Also, there's one other another major change that has happened is in BHU would be required to have a 4-year degree to get admission there. Now, another degree or another exam is PGQP 31 that has changed to SCQP 12 this year, and syllabus is food science and technology for all the universities, including Pondicherry University, that is one of the prestigious institution for doing MSc, very old university, will be getting MSc degree, and in BHU through this examination will be getting MBOC degree. Now, coming to third examination, this is PGQP08 subdivision 12. Now it has changed to MTQP03. Through this examination, we'll be getting dairy technology, and now another course in the row that is new, very new, added this year only, HUQP 11. That is for food science and nutrition students. Now, other very important information that already you might be knowing. We just want to brief about the exam pattern and what would be the duration of the examination. So coming to that, the exam duration is of 2 hours. There will be 25 questions of general aptitude and 75 questions would be of domain or core subject. Also, marking scheme is going to be +4 and -1 with 400 marks, and question type would be objective or MCQP. Okay, so that is you have to take care of. And duration of exam is 5th to 12th of June. Most probably we can expect the admit card. I'm not sure about the event, so you can tell me. Admit card would be mostly available nearby on first week of June, almost, Yes, or sir. May last, right? Okay, Expected so is like now. 7 days before the exam. Right, right. So now we have briefed about the information of CUET related to food technology or revolving around the food technology courses. So now let's talk about the experiences of Divyansu, who has already, I told just before a while, that he has already ranked 2 and he is currently a student of Pondicherry University, where a lot of people wish to go. Okay, so now, yeah, hi Divyanshu, and please let us know that about your journey a little bit, about yourself, and let's talk about the strategies that you followed. What are the things that help to you, and what is going to help with the other people? Please. Okay, sir. Hello, everyone, and hello, sir. Myself, Devanshu Gupta, and currently I'm enrolled in Food Science and Technology program of Pondicherry University. Last year, I gave the CUET examination that was for Pondicherry University, and by God's grace, I got the second rank in that. I know that it was because of my preparations also, and for that, I want to thank Agrivision for you all in that case because it was because of their short notes only that I got to know about, like I knew how to do the preparation. Like what happened last year was our examinations ended in May and the exam was scheduled in September. So there was a good gap of 3 months before the exam. But right now the scenario is different. Currently, if I am correct, right now the students who are in third year or fourth year of their degrees, they will be having their examinations in the month of May, and the examination is in the first 10 days of June. So you guys don't have any much more time left for the preparation if you haven't started yet. But you can do still that in 30 days because
अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं पहले से फूड टेक्नोलॉजी का, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज ऑल द 6 सेमेस्टर्स और द 8 सेमेस्टर्स दैट यू हैव डन। तो बेसिकली आई विल सजेस्ट कि आप एक बार अच्छे से आपके जो भी 6 सेमेस्टर्स का सिलेबस था उनको थोड़ा रिवाइज करिए। पॉइंट 1, गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस में जितना दिया है केवल उतना ही पढ़िए, डोंट ओवर रीड। और अपने जो सोर्सेस हैं पढ़ने के उनको लिमिटेड रखिए, बहुत सारी बुक्स मत रेफर करिए पढ़ने के लिए, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। Go with the basic books that are recommended for a particular subject. And if you don't have your notes, please I will suggest everyone कि आप थोड़ा सा एग्रीविजन के मॉड्यूल से पढ़िए, because they have the best crisp notes that I referred to last year. Also I would like to suggest everyone कि आप जो टेस्ट सीरीज है, because in the last 30 days you can't start with initial, because आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते 30 days किसी एग्जाम के लिए जो भी कॉम्पिटेटिव ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप टेस्ट सीरीज जरूर करके जाइए। अगर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस पूरी नहीं भी हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज करके जाएंगे, बिकॉज उससे क्या रहेगा, आपको एक मेजर आइडिया रहेगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक इन जनरल अगर मैं बताऊं मीट एंड पोल्ट्री से, तो मीट एंड पोल्ट्री से फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं। लाइक 4 स्टेप में वो पूछेंगे कि प्रोसेसिंग ऑफ मीट, या फिर टूना फिश, या फिर एग्स का प्रोसेसिंग पूछ लेंगे। तो उसमें वो फ्लो चार्ट को 4 पीसेस में मिस अरेंज करके दे देंगे, और आपको उसको अरेंज करना रहेगा। सो यू नो कि हाँ मुझे इस पार्ट के मुझे फ्लो चार्ट आना चाहिए। अगर मैं डेयरी में पढ़ रहा हूँ तो डेयरी में मुझे उसका माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से आना चाहिए, एंड डेयरी में पैस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ये सब टेक्निक्स मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए, इनके पीछे के जो प्रिंसिपल्स हैं। सो दैट गोज विद ऑल द सब्जेक्ट्स। अदर किसी भी सब्जेक्ट में आप जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं फूड टेक्नोलॉजी के, सब में आप टेस्ट सीरीज करके जाएंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह सकते हैं उसके एग्जाम के लिए। Okay, so Divanshu, as you told that we have to focus on some of the topics, let's say dairy related or HACCP or ISO or related some of the portions, and also you talked about meat, meat and poultry technology, right? So also, what would be the strategy for examination? Let's say we have only 30 days left, right? So how we should divide the syllabus? Okay, that is the one question. And as already you have told that what are the topics that we should focus on. मुझे आप बताओ कि वो 30 डेज में ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, कि कौन सा टॉपिक कैसे फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिस को कितना टाइम देना चाहिए? ओके, सो बेसिकली जिनने अभी स्टार्टिंग नहीं करी अपनी प्रिपरेशंस की, आई विल सजेस्ट देम कि आप एक बार सिलेबस पूरा अच्छे से देखिए। उस सिलेबस में से आपको कुछ पोर्शन ऐसा जरूर होगा जो आपको पहले से आता है, बिकॉज अगर आपका फूड टेक बैकग्राउंड है तो आपको उसमें से कुछ कुछ चीज़ें पहले से जरूर आती होंगी। आप कोशिश करिए कि आपके वो बैकग्राउंड नोट्स जो आपके बैचलर्स में दिए होंगे उन नोट्स को आप पढ़िए, क्योंकि आपने उनको पहले से एक बार पढ़ रखा है तो आपको पता है क्या चीज कहाँ पर लिखी है। एंड इवन इफ इन दैट केस अगर आपके पास नोट्स नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल गिवन बाय एग्रीविजन, बिकॉज उसमें बहुत क्रिस्प नोट्स दे रखे हैं एंड सेक्शन वाइज अच्छे से नोट्स दिए हैं। एंड अगर आपके पास नोट्स हैं, देन आई सजेस्ट कि आप पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। डोंट स्किप द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइक मीट मैंने पहले बताया, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, डेयरी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यू कैन नॉट स्किप फूड पैकेजिंग, बिकॉज फूड पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड टेक्नोलॉजी का। सो उससे मटीरियल्स एंड कैनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन के टेम्परेचर्स जो होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह के प्लास्टिक मटेरियल को हम किस तरह की पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं। ऑल्सो रिगार्डिंग फूड सेफ्टी, आईएसओ, हैसप, इन सब के बेसिक्स जो है आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली। एंड माइक्रोबायोलॉजी में आपको ऑर्गेनिजम्स के नेम स्पेसिफिकली स्पेलिंग के साथ याद होने चाहिए, बिकॉज व्हाट दे डू इज दे चेंज द स्पेलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड आप फिर उसमें कंफ्यूज रहेंगे। ओह, हाँ सर, लास्ट ईयर राइट। लाइक क्वेश्चन में क्या था, स्टेफाइलोकोकस का स्पेलिंग चेंज करके दिया हुआ था 2 ऑप्शंस में। तो यू हैव टू नो द स्पेलिंग आल्सो ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। Right, तो right. So ये even चीजें रहती very micro level, you have to also know the spellings of the microorganisms, right? That is a very important thing. Sometimes हैं। written style also, we microorganisms is written something curve, or so that should be also taken care of. Okay. So now, जैसे मैं पूछ रहा था दिवांशु कि जैसे क्या होता है लोगों के पास में कि चार, जैसे हमने डिस्कस किया चार कोड्स के बारे में, तो वैसे ही बहुत सारे कोड्स होते हैं, एंड टू गेट इनटू, बिकॉज़ वी आर नॉट श्योर अबाउट कि हम लोग कैसा पेपर होगा एंड कैसा हम लोग करेंगे, कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा। सो वी गो फॉर डिफरेंट कोर्स, राइट, फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। तो उसको कैसे मैनेज कर पैरेलली, बिकॉज कि देखो सिलेबस अलग अलग है, पेपर एक टाइम ही होने वाला, बिटवीन वन विद इन 1 वीक। तो उसको कैसे मैनेज करें पैरेलली, व्हाट शुड बी ऑप्शंस फॉर दैट? और आपने ओके कितने कोर्स के पेपर दिए थे? सर, लास्ट ईयर मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुआ था।
इनफैक्ट मैंने तो थोड़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज के पेपर दिए थे जिनका अलग से ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एनटीए के अंडर नहीं आती हैं। हम्म। सो बीएचयू का एंड जो पॉन्डी का एग्जाम था, उन दोनों के बीच में लाइक 3 डेज का ही गैप था। सो द थिंग इज कि दोनों का सिलेबस सिमिलर है लेकिन दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। सो यू हैव टू गो हम्म। स्पेसिफिकली क्या सिलेबस में क्या गिवन है एंड उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप पॉन्डी का एग्जाम देखें तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन थोड़ा कम है, बट अगर आप बीएचयू वाला एग्जाम देखें MTQP 06, तो उसमें हम्म। माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन काफी अच्छा दे रखा है एंड इंजीनियरिंग पे भी काफी फोकस किया हुआ है। बट पॉन्डी वाले में इंजीनियरिंग पार्ट थोड़ा लैकिंग है, उसमें लाइक इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे। तो ये चीज है, इसके लिए आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस की भी तैयारी करके जाइए। एंड अगर 2 या 3 एग्जाम आपको एक साथ देने हैं तो आई सजेस्ट कि आप अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं जो उन दोनों में आ रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइए, कि ऐसे टॉपिक्स जो दोनों पेपर में आ रहे हैं आप बस उनको फोकस करके जाइए, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करके गया लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। एंड कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत टफ टॉपिक में से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। सो राइट ये राइट, तो ये पेपर आपको की अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। राइट कॉमन टॉपिक्स हमेशा पढ़ के जाना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द हम्म, इम्पोर्टेंट थिंग, दैट कॉमन टॉपिक्स शुड बी वेल क्यूरेटेड और अपने अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड हम्म, दिव्यांशु, आप मुझे बता दो कैसे लास्ट टाइम में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट प्रीवियस ईयर तो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, या मार्क्स के हम्म। बारे में क्या व्हाट इज योर थिंकिंग। ओके सर, सो द थिंग इज लाइक अगर कोई बच्चा अभी लास्ट 30 डेज में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी वीडियो देख रहे होंगे वो अभी उनके एग्जाम शायद खत्म होने वाले होंगे या उनके एग्जाम जस्ट खत्म हुए होंगे एंड उनके पास ये थोड़े 2 या 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम बचा होगा जिसमें वो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप मेजर टॉपिक्स को पकड़िए। अगर आपने मीट पढ़ लिया है या फिर पोल्ट्री पूरा तैयार हो चुका है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के बाद सीधा उसकी टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ इसमें से ये टॉपिक्स हैं, ये मुझे अच्छे से आते हैं, इनसे क्वेश्चंस मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए टेंशन फ्री रहें कि हाँ जी अगर मेरा डेली कंप्लीटेड है तो मैं डेली से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ। नाउ यू कैन फोकस ऑन द राइट अदर टॉपिक्स। तो दैट विल बी द स्ट्रेटेजी कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़िए, उसके बारे में थॉरली पढ़ लीजिए जितना आप पढ़ सकते हैं, नोट्स अपने गो थ्रू कर लीजिए, मॉड्यूल है अगर आपके पास मॉड्यूल गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आप उसकी टेस्ट सीरीज को करिए। टेस्ट सीरीज से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ अभी उसमें आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। अगर आपके 50% से भी कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, दैट मीन्स यू नीड टू रिवाइज द टॉपिक अगेन। अगर आपके 60-70% मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स अगर वो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो चुका है, देन यू कैन गो ऑन द अदर टॉपिक्स। सेम गोज विद ऑल अदर टॉपिक्स। अगर आपने ऐसे करके जो मेन अगर 7 से 8 टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, अगर आपने वो कवर कर दिए तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट अ गुड रैंक एंड यू विल गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। राइट, वट एवर योर एस्पिरेशंस इज, जहां भी आप जाना चाहते हो मोस्ट प्रोबब्ली विल हाँ। बी गेटिंग इनटू दैट। हम्म, सो एक प्रोबेबल नंबर बताओ कि हमें ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, व्हाट अबाउट दैट। कौन कौन से बुक्स रेफर करने, जनरली लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि सर व्हाट आर द बुक्स दैट वी शुड जस्ट रीड इन दिस 1 month एंड वी शुड गेट एवरीथिंग। हाँ। सो व्हाट इज तो द ओपिनियन ऑन दैट। तो सर आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आप बुक्स की तरफ ना ही भागें, बिकॉज बुक्स तभी पढ़ते हैं जब हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में फ्रेजर बुक है जिसमें सब कुछ गिवन है बहुत अच्छे से, लेकिन राइट, उस बुक को बहुत पढ़ने अच्छे के से। लिए आपको अच्छा खासा 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए। जब आप उसको थॉरली पढ़ेंगे, उससे ट्रू। नोट्स बनाएंगे, तब आप उनको याद करेंगे। 30 days इज नॉट द टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपरेशन, ओके। 30 days द टाइम दैट यू स्टार्ट राइट। योर रिविजन, ओके। सो मैं यही दैट्स अ कहूंगा। गुड लाइन। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले से जो प्रिपेयर्ड नोट्स हैं उनसे याद करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज अभी आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो दैट इज द थिंग। राइट राइट राइट। सो अभी जो भी सर, जो भी अभी प्रिपरेशन कर लिया उसको रिवीजन कर लीजिए, और मोस्टली आपको प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस ध्यान करना देना पड़ेगा। चाहिए। राइट दिव्यांशु, आप आपके पास जितना भी टाइम था, व्हाट डिड यू डू इन दैट एंड हाउ डिड यू प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस, एंड व्हाट अदर एस्पिरेशंस, मतलब जो एस्पिरेंट्स है अभी आने वाले, वो कहाँ से प्रैक्टिस करें। ओके सर, सो इसके लिए आई सजेस्ट कि पहले तो आप अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से गो थ्रू वो कर फिनिश लीजिए। कर लो। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज गेट द टेस्ट सीरीज फ्रॉम एग्रीविजन। आपको उसमें हर सेक्शन के डेडिकेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लास्ट ईयर हमारे पास टेस्ट सीरीज नहीं थी, हमारे पास मॉड्यूल था, बट इस साल वी राइट, हैव अ गुड टेस्ट मॉड्यूल था। सीरीज। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि वेरियस सोर्सेज से निकाले गए हैं। कुछ हमारी जो बेसिक बुक्स हैं बुक्स से भी हैं, कुछ जो हैं हमारे क्या कहते हैं बैचलर के नोट्स से भी हैं, कुछ हमारी जो पॉपुलर बुक्स हैं उनसे भी लिए गए हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस खुद भी फॉर्मुलेट करे गए हैं न्यू, ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए।
लाइक होता है कि हर साल Right. चीजें इंप्रूव होती रहती हैं, कुछ कुछ नए एड ऑन्स आते रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी डाले गए हैं इस बार टेस्ट सीरीज में। तो आई सजेस्ट कि आप सब लोग एक बार टेस्ट सीरीज को गो थ्रू कर लीजिए। एंड सेकंड थिंग, लास्ट ईयर व्हाट आई डिड वाज, मैं वो टेलीग्राम ग्रुप है जो एग्रीविजन का, मैं उसमें था, तो उसमें रोज अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आते रहते हैं, एंड उस वो एनी टाइम ऑफ द डे आते आ रहते, जाते हैं। right? Ways to हाँ वो, give. हाँ वो 24/7 कभी भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो आई जैसे ही वो मेरे फोन में क्वेश्चन पॉपअप होता था, वो विद उसका ये बहुत अच्छा फायदा है कि आपको उसमें प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। लाइक वो 5 क्वेश्चंस Right. रहते हैं, उनमें टाइमर लगा होता है 90 सेकंड्स का, आपको 90 सेकंड्स के अंदर 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एंड उसी करना टाइम ही आपकी है, रैंक right? भी आ जाती है कि उसी टाइम आपको बता देंगे कितने करेक्ट थे, कितने What सही थे, I've कितने गलत achieved. थे। True, हाँ, true, true, true. सो उससे बहुत That फायदा is हुआ था। what we are doing. मुझे कई लोगों ने बताया दिवंश, in fact many people has got lot of good ranks, और बहुत फायदा मिला even competitive examination में और intense examination में, both people has got lot of benefits out of that. Okay, we'll also provide, dear students, we are also going to provide you brochure for this examination. In that will be giving the whole strategy and all the platforms, and some of the mocks also we are going to provide free of cost on the website of AgriVision for you. Please visit us, join us on Telegram, also follow us on Instagram. We have also subscribers. Okay, you will be also getting a lot of other videos on the same topic. Also, previously also we have discussed with Divanshu on what are the other things that has to be taken care of. Also, if you're preparing for some other examination like CUT, CFTRI, GATE, food technology, or ICR in if you're going for agronomy, plant science, food technology, whatever the subjects, or some competitive examination related to agriculture and allied, please subscribe us and know about whatever the examination that is coming up. Okay, bye bye. Thank you. थैंक यू एवरीवन।